ओके। तो हम पढ़ रहे थे एडा डेल्टा ऑप्टिमाइज़र। आई होप आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करी होगी, तो जाकर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक। सो as we have seen in the optimization process that we mean to reduce the errors in our training process. Okay, various optimizers we have studied, starting from stochastic gradient descent, momentum, Nestro, ADA grid, and then comes ADA delta. Okay, so ADA delta. What happened in ADA grid was it's a good optimization technique, and it has been told that you have to make learning rate dynamic. Okay, for that purpose you are dividing learning rate by the sum of the square of the gradients. Okay, that's what you are doing, plus one small value, that is epsilon, so that this denominator should not have to be 0. All right, this approach was given in ADA grid, and the equation was w dash is equal to w minus alpha, this complete thing. Okay, this complete thing plus epsilon into del L by del W. Okay, this was the equation. Okay, then it comes to know that, sir, here if the denominator is going to increase, okay, then alpha is, sir, here numerator, that is the value which we already given, so it is not changing, overall ratio is changing because of your denominator change in the value. All right, so in case if denominator is going to increase a lot, the complete ratio is going to decrease a lot. Okay, and it may happen that this ratio tend to 0, and if this tends to 0, what kind of update we are going to get in w dash? Nothing. Okay, because if this will be 0, the change in the gradient multiplied by 0 will be 0, so w dash equal to w, so there is no optimization. Okay, so the question answer related to this problem was not given by ADA grid. Okay, algorithm, the approach is fine. Okay, but this was the issue. Okay, which was faced by ADA grid algorithm. Okay, and the point was behind this that we are giving equal, okay, we are giving equal importance to all the previous gradients. Okay, that means here you are adding the square of the gradients, and all the gradients are given equal importance, though you have reached so far, but still you are considering the previous gradients information also in a same impact as you are considering the current gradient information. That is the issue. Okay,
We very well know that in this particular process, gradient is very much important, because gradient is showing us the path in which direction we have to move. Okay, this is what shown by the gradient. Okay, our goal was to find local minima, and we are going along the direction of gradient to find this local minima, ultimately global minima. Okay, whatever be the best according to the possibility, according to the problem, according to the scenario, whatever be the best you achieve, we'll be happy with that. Okay, so this gradient is doing this thing. Now, in this particular case, as we are doing the square of the gradients, adding them, taking the square root overall, okay, this value is increasing. In case if this value is increasing, the ratio is decreasing, and we are facing this issue. So then comes the updated version of ADA grid, that is ADA delta. This one, ADA delta. Okay, ADA delta says that please don't consider, okay, please don't consider the same importance of the previous gradients. Okay, don't consider the same importance. In fact, those gradients which are calculated recently, give importance to them. Okay, recent calculation, we have to give importance to them, not to the previous gradients, because we have already came so far. Okay, now you are present here. Okay, you are present here. Okay, so giving importance to gradients of these points will doesn't help us much, because we have already crossed those points, we are already ahead of those points. Now the thing is, whatever be the recent gradients calculated, just give the importance to them. Okay, you came from this point to this point and this point to this point. Okay, so whatever be the gradients calculated here, we have to give the importance to them, rather than considering the previous gradients importance. Because if we give the importance to them, okay, the point is their complete value will be added, and my denominator will be going to be more, and overall ratio is impacted. Okay, so here we want to reduce the importance, ultimately reducing the value of these gradients, okay, their contribution, and whatever be the recent gradients calculated now, I am going to give the importance to them. Okay, that's what ADA delta said. Okay, now the question is how you are going to mathematically perform this task. Okay, the concept we understood, and everything now, whatever be the concept which are coming, they are the part of real world, like complications and the solutions. Okay, we always, okay, remembering the information, that means if I ask you what happened with you 10 years back, so what you are going to say to me? What happened with you 20 years back, what you are going to say to me? Okay, you can remember what happened just with you recently, that means few months back, a year back, that's what you can say. But if I ask you what happened with you after previously, मतलब 20 years पहले क्या हुआ था आपके साथ, अब यार 20 years तो बहुत टाइम निकल गया, अब तो हम इतना आगे आ चुके हैं, वी केम सो फार। आप अभी हमसे रिसेंट पूछ लो तो हम बता देंगे आपको, इतनी पुरानी बातें कहाँ हमको याद रहेगी। बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आई एम फोकसिंग अपॉन दिस थिंग ओनली, दैट यू काइंडली टेल ना अबाउट द रिसेंट ग्रेडियंट्स, रिसेंट अपडेट्स के बारे में आप बात करें, पुरानी बातों को आप जो है इतना ये जो है इंपॉर्टेंस ना दें, ठीक। तो इसके लिए व्हाट इट डिड इज, जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो कॉन्सेप्ट है EMA, EMA, that is exponential moving average. Okay, exponential moving average, this concept is used. Okay, and in previous class also I just gave a short introduction about this EMA thing, that in case of financial data,
or in case of stock price prediction or something such projects which we do make now, there we consider the variables like EMA or rolling average, something like this we do use there. The same concept now we have to follow here also. So what this EMA is, now let me share my entire screen. You have to listen carefully throughout the lecture because these are very valuable concepts. Okay, exponential moving average. Fine, here it is. Okay, so exponential moving average is a statistical calculation that is used to analyze data over a period of time. That's what this algorithm said. Over a period of time, भाई आप समय के हिसाब से डेटा का आकलन करें. काइंडली एनालाइज द डेटा अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम. आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है कि सालों पुराना डेटा भी आप अपने करंट जो एनालिसिस है उसको उतना ही महत्व दें. नो, it is not at all mandatory that you have to give a equal weightage to a very older data. Okay, just upgrade yourself now. What happened now is something important. So period of time, analysis of data over a period of time is very much important. Okay, so placing more weights over the recent observations, यही तो मैं बोल रहा था आपसे कि जो अभी घटित हुआ है, वट एवर बी द इंसिडेंट्स विच टुक रिसेंटली, आप उसको ज़्यादा महत्व दें, पुरानी बातों को छोड़ दें. ठीक है, भूल जाइए उन्हें, पुरानी बातों को. पुरानी बातों में क्या रखा है, ठीक है, नई बातों पर आइए आप. ऑल राइट, सो kindly give weightage to the recent observations while gradually decreasing the importance of older ones. ओके, इट इज वाइडली यूज्ड टेक्निक इन टाइम सीरीज. मैं आपसे कह रहा था फाइनेंस डेटा में इसका बहुत यूज होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी होता है, एंड देर आर वेरियस अदर फील्ड्स, और जो कि वी आर एक्चुअली डीलिंग विद राइट नाउ. वी आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट अंडर ऑप्टिमाइजर. ठीक. So the concept behind EMA is to create a smooth time series. Smooth time series बनाना है मेरे को. ठीक है, आपको एनालाइज करना है डेटा. डेटा का एनालिसिस क्या होता है? डेटा का एनालिसिस होता है उसमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें ट्रेंड्स को एनालाइज करना, डेटा का मूवमेंट कैसा हो रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू in machine learning algorithms also, and here in moving average, that's what we are looking forward for. So we are trying to capture the patterns in the data, trend in the data. वो अब कैसा जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है, अल्टीमेटली दैट्स व्हाट वी वांट टू आइडेंटिफाई. दैट मीन्स रिसेंटली अभी क्या चेंज आया है, और नेक्स्ट इस रिसेंट चेंज का इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है. दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन. Okay, so this thing is going to make easier to analyze and to visualize the data. Okay, so EMA is particularly useful in applications such as trend analysis, noise reduction, identifying the changes or shift in the data. और यही वो जो कह रहा है ना, ट्रेंड, पैटर्न, नॉइस रिडक्शन, शिफ्ट, ये हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज या रोलिंग. ओके, रोलिंग के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, जहां पर क्या होता है कि आपसे इन फाइनेंशियल डेटा या स्टॉक मार्केट में डेटा में पूछा जाता है कि 3 डेज के बाद का या 7 डेज के बाद का एवरेज बताइए, एवरेज बनाइए आप. तो देयर वी यूज रोलिंग. ठीक है, फाइन, वहां पर करते हैं. अब बेसिक आइडिया in exponential moving averages to compute the weighted average of data points. अब ये काम की बात करेगा, और weighted average of data points. Sir, what do you mean by weighted average of the data points? क्या बताना चाह रहे हो, weighted average का मतलब क्या है? Weighted average, weight that means you have to assign something, ठीक है, to the data. All right. तो weight जो है, it decrease exponentially with time. Weight decrease exponentially with time. यानी आपने डेटा को वेट असाइन कर रखा है. ओके,
वेट यहां मैं कहूंगा उसका महत्व, इंपॉर्टेंस. You have assigned data with a weight. So if something is happened today, its weight is W. Okay, today weight is W. जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो वेट है वो एक्सपोनेंशियली डीके होते चला जाएगा. एक्सपोनेंशियल डीके. ओके. डीके दैट मीन्स रिड्यूस होता चला जाएगा. There's a decrease in the weight of that particular data. See, as I told previously also, पूरा मैथ से चल रहा है यहाँ. आपको इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव आई, कहीं पर भी आपको मैथमेटिकली आंसर देना पड़ेगा किसी भी बात का. यहां तुक्केबाजी नहीं चलती. आप मैथमेटिकली समझाइए किसी भी कॉन्सेप्ट को. ठीक है. हमने कहा कि इंपॉर्टेंस कम कर देंगे, कैसे, हाउ. आप मैथमेटिकली समझाइए कैसे करोगे कम. ठीक. तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि यू डू असाइन वेट टू द डेटा. And as the days are going on increasing, the importance of that data is going to be reduced exponentially with respect to time. जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, टाइम बढ़ते चले जा रहा है, उसका महत्व एक्सपोनेंशियली कम होते चले जा रहा है. ठीक है. सो द रीसेंट डेटा पॉइंट्स दे हैव हायर वेट, ऑब्वियसली समझ गए बात. ठीक है. एंड द ओल्डर डेटा पॉइंट्स दे आर हैविंग लो वेट, क्योंकि कम हो गया ना यार वो. ठीक, कम हो गया. ओके. सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ईएमए, अब जरा यहां पर आते हैं, ये आ गई मैथ्स. दिस इज द फॉर्मूला. ओके. ईएमए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेटा टी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू ईएमए टी माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट अ करंट टाइम, एट अ टाइम टी, is equal to alpha into data t. Then a data at a time t and alpha is the smoothing factor. It's a hyperparameter. बताएंगे अभी क्या है इसका भी रोल. एंड ई एम ए टी माइनस वन, दैट मीन्स प्रीवियस वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ठीक है. तो इसको देखें, वी डू राइट दिस इक्वेशन. क्या बोल रहा है वो कह रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट अ टाइम टी. यानी आप ले लीजिए दिस इज अ करंट टाइम स्टेप. ठीक है. दिस इज अ करंट टाइम एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेटा टी. ठीक है. डेटा एट अ करंट टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू ई एम ए टी माइनस वन. यानी कि जो प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो, दिस इज प्रीवियस ई एम ए. ठीक है. प्रीवियस. एंड वी आर कैलकुलेटिंग ई एम ए एट अ करंट टाइम. ये निकालना चाह रहे हैं. ये है डेटा एट द करंट टाइम, और प्रीवियस डेटा तो इसके अंदर आ ही गया होगा. वो तो ई एम ए टी माइनस वन में प्रीवियस आ गया होगा, ऑब्वियसली बात है. ठीक. ये देख लीजिए व्हाट इट इज टेलिंग. ओके. कहाँ गया ये रहा. ई एम ए टी इज अ मूविंग एवरेज एट अ टाइम टी. ठीक है. अभी अपन करंट ही मान लेंगे, टाइम टी है. ठीक है. अल्फा स्मूथनिंग फैक्टर है, हाइपर पैरामीटर है, जिसका वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है. स्मूथनिंग फैक्टर का मतलब ये कि देखिए भाई, हम चाहते हैं जो ट्रेंड बने. ओके. जो ट्रेंड बने, जो पैटर्न आए, ठीक है, वो स्मूथ आए. ओके. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्मूथ. क्योंकि क्या रहता है, ये भी आपकी डिजायर है. ठीक है. डिजायर है. क्यों? क्योंकि भाई स्मूथ पैटर्न का एनालिसिस कैन बी इजी थिंग. यदि आप बोलो कि नहीं हम तो भाई एनालिसिस कर लेंगे, तो एनालिसिस भाई यदि हार्ड एंड फास्ट पैटर्न रहा, अनइवन पैटर्न रहा, तो उसकी एनालिसिस करना टफ पड़ता है. ठीक है. ये आपका डिजायर है कि पैटर्न जो हो वो स्मूथ हो. ठीक है. लाइक मुझे जो कर्व मिले जिसका एनालिसिस मैं इजीली कर सकूं. ठीक है. तो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही बनाते हैं. ठीक है. इजीली हम उसको कर सकें सॉल्व. ठीक है. तो अल्फा एक स्मूथनिंग फैक्टर है. वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि कोशिश कर रहा है कि वट एवर बी द ट्रेंड, वट एवर बी द पैटर्न विच यू आर मेकिंग फॉर द डेटा इन वेटेड एवरेज, ओके, दैट शुड बी स्मूथ इन नेचर. ऑलराइट. ठीक. ये डेटा है एट अ पॉइंट टी.
ठीक है, एट अ टाइम टी की बात करें, और ये प्रीवियस वाला है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये स्मूथनिंग फैक्टर अल्फा, अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये अल्फा मान लिया अभी, ठीक है। इट डिटरमाइंस द वेट असाइंड टू द मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट, ये बताएगा कि भाई कौन, ये एक हाइपर पैरामीटर है, एंड इट इज टेलिंग व्हाट वेट इज असाइंड to the most recent data point. For example, we are present here and the most recent data point is this thing. Okay, so what is the weight applied to the applied to this data point? Okay, and we can control the smoothness of the EMA by changing the value EMA of the curve. EMA curve, देखो कर्व बोल दिया ना इसने। मैं अभी तक क्या बोल रहा था, यहाँ ऊपर क्या बोला मैंने, कि मेरी डिजायर है कि मेरे को जो कर्व मिले ना वो स्मूथ मिले, ताकि मेरे को पैटर्न और ट्रेंड समझ में आ जाए। ठीक है, यदि अनडिजायरेबल आपको पैटर्न इफ यू आइडेंटिफाई, that means it will be very much difficult for you to understand the trends or the patterns present in that particular curve। मतलब आपको पता नहीं चलेगा डेटा जा कैसा रहा है। मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ वो डेटा को समझने के लिए तो कर रहा हूँ। ठीक है, जितना भी काम चल रहा है डेटा को समझने के लिए चल रहा है, और फिर मैं एरर आई एम गोइंग टू रिड्यूस, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। ओके, तो यहाँ कहा गया कि भाई अल्फा जो है ये डिटरमाइन करता है व्हाट इज द वेट असाइन टू द मोस्ट रीसेंट डेटा पॉइंट। द मोस्ट रीसेंट डेटा पॉइंट, उसको क्या वेट असाइन किया गया, और ये स्मूथनेस कंट्रोल करेगा कर्व की। स्मॉलर अल्फा प्लेस मोर वेट ऑन ओल्डर डेटा पॉइंट्स, रिजल्टिंग इन अ स्मूथर बट लेस रिस्पॉन्सिव कर्व। Larger alpha places more weight on the recent data points, okay, making the curve more responsive to recent change but potentially noisier। अच्छा, इसने it told the advantage and disadvantage in both the cases। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि if I give more weightage to the older data point, in that particular case we are going to result इन अ स्मूथर बट लेस रिस्पॉन्सिव कर्व। लेस रिस्पॉन्सिव कर्व, स्मूथ तो मिलेगा, लेस रिस्पॉन्सिव कर्व मिलेगा। बट इफ आई पुट मोर वेटेज टू द रिसेंट डेटा पॉइंट्स, मेकिंग द कर्व मोर रिस्पॉन्सिव, मोर रिस्पॉन्सिव, और ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स वाला मिलेगा, बट टू द रिसेंट चेंजेस बट पोटेंशियली नॉइसर। यहाँ पर नॉइस हो सकता है, नॉइस दैट मीन्स ट्रेंड में चेंज आ सकता है जो कि शायद आपको स्मूथ कर्व ना दे। ठीक है, अब थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात, सर वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्मूथर कर्व। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग कर्व स्मूथ हो। ठीक, अब स्मूथनेस तो जब पुराने डेटा को दोगे वो कह रहा है तब बढ़ेगी, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव हायर वेटेज टू द ओल्डर पॉइंट्स, then the smoothness will be increase। However, if we give higher weightage to the recent point, then smoothness will be disturbed, response will be better। Okay, response will be better, smoothness will be disturbed। ओके, मेरे को यदि बेटर अंडरस्टैंडिंग करना हो तो कर्व स्मूथ होना चाहिए था, लेकिन अब बात रिस्पॉन्स के ऊपर आ गई है। नाउ वी आर टॉकिंग द थिंग्स रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स। ओके, and it is saying that if you want to understand ahead, okay, that means what should be the correct optimization as you are struggling in ADA grid, you have to focus upon the response। बिकॉज इफ यू फोकस अपॉन द स्मूथनेस, जो कि आपकी डिज़ायर थी कि भाई मैं तो स्मूथ चाह रहा हूँ और ओल्डर डेटा पॉइंट्स का भी वेटेज मुझे हाई रखना है, तो ऑब्वियसली यू विल बी स्ट्रगलिंग देयर। ओके, तो ऐसा है, थोड़ा स्मूथनेस में इम्पैक्ट आएगा। ओके, बट रिस्पॉन्सिव कर्व मिलेगा आपको। ओके, यू विल बी गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिव टू द रीसेंट चेंजेस, और मेरे को रीसेंट चेंजेस को ही तो फोकस करना है, पुरानी बातों को नहीं करना फोकस। हाँ, थोड़ा सा नॉइजी रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर माइट बी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग जस्ट रिसेंटली, बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी नई नई। ठीक है, अब क्या है, समय ऐसा है। ठीक है, तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग रिसेंटली, तो इट इट कुड बी ए नॉइजी। कई आपको अप एंड डाउन मिल सकते हैं, फ्रिक्वेंट अप एंड डाउन मिलेंगे लाइफ के अंदर, ये स्मूथनेस नहीं होंगी यहाँ पे। हाँ, पुरानी में
स्मूथनेस होगी, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी। ओके, यहाँ पर नॉइजी होगा थोड़ा हिसाब किताब, लेकिन अब मेरे को काम इसी से चलाना पड़ेगा। क्या है, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए ना, आई नीड टू हैव अ बेटर रिस्पॉन्स। Okay, so we are going to follow this thing. So all these depends upon the smoothening factor. Okay, so smoothening factor is going to assign weight to a data point. Okay, more weight will be assigned to the recent one as per my ADA delta algorithm. Recent per more weight, and there will be exponential decay of weight for the older ones. Okay, because I want them to be least responsive, I want recent to be more responsive. ठीक है, ऑल राइट, ये बात है। फिर अब क्या हुआ देखिए, टू कैलकुलेट द ईएमए वी नीड टू इनिशियलाइज इट with a starting value, typically using the first data point and a simple average or a arbitrary value. We have to start with something, just give some value. Okay, to start na EMA, just give some value, and then you know the formula how the next values can be calculated. This is a formula how the next values can be calculated. ठीक है, all right, वो कर लेंगे अपन। Fine. So here, what are the advantages of using EMA? It says that okay, अब advantages में देखो, EMA helps to reduce the impact short term fluctuations in the data, making underlying trends and the pattern more visible. Okay, अब ये जो लिखा है लिखा रहने दो, मैं तो अभी जो है इस लाइन को तो हटाओ। Okay, just remove this line, focus upon this line. इट इज मच मोर रिस्पॉन्सिव टू द रिसेंट चेंजेस। मेरे को ये चाहिए था, ये मेरे लिए स्टार वाला पॉइंट है। ओके, इट अलाउस इट टू ट्रैक शॉर्ट टर्म वेरिएशंस एंड द ट्रेंड्स एफिशिएंटली, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। ओके, शॉर्ट term variations and the trends efficiently, that's what I want to focus. Okay, and trend identification, that means it is useful in identifying trends and the change in the data as it places more weight on the recent observations. Okay, these 2 points are important for me. This point I'm ignoring. Noise reduction, हो सकता है फ्लक्चुएशंस यदि रिसेंटली ज्यादा हो तो नॉइस होगा, तो मैं इसको एडवांटेज में अभी आई एम नॉट कंसिडरिंग फुल्ली, सो आई रिमूव दैट थिंग। response and the identification, trend identification is matter for me, because right now what's happened or what recently happened keeps importance. Okay, rather than what happened 10 years back is not important for me. ओके, सो यूज केसेस में आपको मैंने बता दिया था, अभी अपन ऑप्टिमाइजर में ईएमए चला रहे हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सर, चॉइस ऑफ स्मूथनिंग फैक्टर। एज यू टोल्ड सर दैट स्मूथनिंग फैक्टर अल्फा डू असाइन वेट टू द डेटा पॉइंट्स। ओके, it assign weights to the data points. So sir, what alpha we will take sir? Okay, recent data points को sir more weight देने का है, that's what you told. Okay, so here it is saying that the value of alpha, the choice of alpha, that is the smoothing factor, depends upon the specific application and the desired trade-off between smoothness and the responsiveness. Okay, तो ये अब जो है हमारे पास ट्रेड ऑफ हो गया, फाइट हो गई, there is a fight between smoothness, okay, smoothness versus effectiveness. ओके, इफेक्टिवनेस। अब क्या है, यदि स्मूथ होगा तो मेरे को एनालिसिस में आसानी होगी। ओके, इट विल बी इजियर फॉर मी, आसानी होगी, मेरे को पता रहेगा यार कैसा क्या जा रहा है। इफेक्टिव होगा तो आपने रिसेंट वाला उठा लिया, रिसेंट ट्रेंड, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके, एंड रिसेंट ट्रेंड यू मे हैव अ फ्लक्चुएशंस। ओके, फ्लक्चुएशंस होगा तो क्या होगा कि नॉइस फ्लक्चुएशन ही होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर एनालिसिस में यू में हैव अ डिफिकल्टी, बट ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, इफेक्टिवनेस है, रिस्पॉन्सिव है, दिस इज मच फॉर रिस्पॉन्सिव। यहाँ से मुझे और बेटर पता चलेगा कि लाइफ में क्या हलचल चल रही है, ठीक है, मेरे को और ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि वो मेरा डेटा का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो किस तरीके से कहाँ जा रहा है। वो स्मूथ होता तो भाई लाइफ तो स्मूथ चलने से रही है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि लाइफ स्मूथ चल रही है, ठीक है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्टिवनेस और स्मूथनेस के बीच में फाइट है। स्मूथ होगा तो इफेक्टिव कम होगा, ठीक है, इफेक्टिव यानी कि आप यदि सोचो लाइफ स्मूथ चले
तो भाई उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसी क्या लाइफ है जहाँ पर यार आपने कुछ भी जो है वो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी फेस ना करी हो। ठीक है, और इफेक्टिव है। ठीक है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एवरी टाइम इज है गोइंग टू हैपन। सो इस तरीके से बातें हैं। अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी इज देयर इन द डेटा, और डेटा अनसर्टेनिटी को तो फॉलो करता है। कल को क्या हो जाए कोई पता थोड़ी ना है, तो अनसर्टेनिटी है, ये तो रिस्पॉन्सिव अनसर्टेनिटी, स्मूथनेस वाली बात है। ठीक है, ये बात है। ओके, तो जैसी परिस्थिति बन रही है, वॉट एवर बी द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द योर, यहाँ बोला ना, स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिजायर्ड ट्रेड ऑफ बिटवीन स्मूथनेस एंड द रिस्पॉन्सिवनेस इज गोइंग टू बी हैपन। ओके, एंड आप उस हिसाब से वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिएगा अल्फा की क्या होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि आई एम गोइंग टू टेक मोर वेट टू द रीसेंट डेटा पॉइंट्स। ओके, इफ आई डू टॉक अबाउट द एडा डेल्टा। ठीक है, ऐसा मुझे करना है। सो जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पर किया गया है, न्यूमेरिकली मैं आपको सॉल्व करके इफ आई डू टेल ना, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, आपको समझ में आ जाएगा और बेटर। आई एम टेकिंग अ डेटा, एक्चुअली अ सेट ऑफ डेटा, and I'm taking smoothing factor as 0.2, and I'm going to calculate the EMA for you. Okay, so let us suppose these are the data points. Okay, मुझे इसका ट्रेंड पता करना है। These are the data points. ऑल राइट, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28 एक डेटा ऐसा दिया है, और यहाँ पर आई टुक स्मूथनिंग फैक्टर एस 0.2, which means that will give more weight to the most recent points. That means 80% of the weight to the new data and 20% weight to the older data. अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। उसने क्या कहा था कि स्मूथनिंग फैक्टर 0 से 1 के बीच में होता है। यदि आपने स्मूथनिंग फैक्टर 0.2 लिया है, इसका मतलब है कि 80% आप नए डेटा को दे रहे हो। और तभी फॉर्मूले में जरा नजर डालना, क्या लिखा था फॉर्मूला? ई एम ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेटा टी। डेटा टी ये लिखा था। ऑल राइट, तो अल्फा इंटू डेटा, ये डेटा टी ये तो भाई नया वाला होना चाहिए। ये नया वाला है क्या? ये डेटा टी एट अ टाइम टी है ना। ठीक है, इसको मेरे को 80% वेटेज देना है जो न्यू डेटा, और 20% वेटेज मुझे पुराने वाले को देना है। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, अभी देखते हैं क्या बात बन रही है। ठीक, तो चलो करते हैं। ये देखो, ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये डेटा एट अ पॉइंट टी था, आपने अल्फा मल्टीप्लाई करा। अच्छा, फॉर्मूला आगे क्या था? 1 - अल्फा इंटू इंटू ई एम ए टी-1, ये फॉर्मूला था। अब अप्लाई करते हैं, तब आपको जो है और बेटर रहेगा। तो ये देखिए, for example, you are going to take EMA1. That's what you are calculating. The first exponential moving average you are calculating. So the formula says alpha into data 1 plus 1 minus alpha into initial EMA. अब मान के चलो इनिशियल ईएमए कुछ ले लो, आप अभी अज्यूम कर लो। जीरो से बेहतर है कि कुछ अज्यूम कर लो। ठीक है, अच्छा, अल्फा है 0.2, डेटा 0.1 है 10, देख लो, ये रखो, ये पहला वाला पॉइंट है 10, दिस इज 10। ओके, तो यू आर पुटिंग 10 हियर, तो 0.2 इंटू 10 प्लस 0.8 इंटू इनिशियल ईएमए। अभी मैंने इनिशियल ईएमए मान लो वो भी 10 ले लिया। ठीक है, जो पहला वाला डेटा पॉइंट है ना उसके बराबर ही सेट कर दिया इनिशियल ईएमए। लेट अस सपोज कि वो भी 10 है। ओके, सो हियर आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ ईएमए 1। ये मेरे को मिल गया, ईएमए 1 का वैल्यू मिल गया। ऑल राइट, ठीक है, ये मिल गया। अब मैं ईएमए 2 निकालूंगा। ओके, ईएमए 2, now EMA2 is equal to 0.2 into 12। 12 वो आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना। ठीक है, वो नेक्स्ट वाला पॉइंट है 12 इंटू 0.8 इंटू EMA1। ठीक है, ये पुराना वाला, तो 2 निकाल रहे हो तो T-1 यानी 2 - 1 EMA1। EMA1 10 था, आप यहाँ पर पुटअप करोगे 10.4। फिर EMA3 निकालोगे। EMA3 अगेन 0.2 इंटू थर्ड पॉइंट था 15, पुराना EMA आया है 10.4, तो आप निकालोगे। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आप वैल्यू देख पा रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड EMA फॉर द डेटा पॉइंट्स विच केम टू बी हियर एज फॉलोस। ये आया आपके पास। अब यहाँ क्या हुआ? दिस represents that the exponential moving average of the given data series with a smoothing factor 0.2
द ईएमए वैल्यू प्लेस मोर वेट ऑन द रीसेंट डेटा पॉइंट्स। अच्छा आप ये बताइए, ईएमए वैल्यू रीसेंट डेटा पॉइंट्स को ज्यादा मिला है या कम मिला है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक बाय दिस? with recent data points, are you giving more weightage to them or less weightage to them? भाई हमने तो कहा था more weightage देना है आपको। इस सोल्यूशन से ये लग रहा है कि रिसेंट वालों को नया जो है वो दिया है, more weightage दिया है। व्हाट डू थिंक? recent data points have got more weightage or less weightage? Tell me. More weightage, sir. Okay, how you can tell this thing mathematically? क्या मैंने सही फॉर्मूला लगाया है? For example, I started with this data point. Okay, data point number 1, that was 10. So how much weightage I gave to it? I multiplied with the smoothing factor alpha. The value of alpha was 0.2. So I multiplied 10 into 0.2. ठीक है, ये करा मैंने। तो मैंने इसको ज्यादा वेटेज दे दिया या कम वेटेज दे दिया, बताइए। ये देखिए, आप जो पूरा सॉल्यूशन कर रहे हो, इसमें क्या नजर आ रहा है? और ये मेरे। Minor variation, sir. Smoothness is there, sir. हाँ, स्मूथ। The smoothness it is there, and हाँ variations are very small. हाँ, देखिए स्मूथनेस है इसके अंदर। इसके अंदर आप देखिए ना, ज्यादा चेंजेस, ज्यादा वेरिएशन मिले क्या आपको? 10, 10.4, 11, 12, 12, 13, 13, 14। डू यू थिंक स्मूथनेस इज देयर और वेरिएशन इज देयर? व्हाट डू यू थिंक? क्या है यहाँ पे, स्मूथनेस है या Smoothness वेरिएशन? is there. Smoothness, sir. स्मूथनेस है, ओके। व्हाट अबाउट अदर कैंडिडेट्स? यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, व्हाट डू यू थिंक? इज देयर स्मूथनेस और इज देयर वेरिएशन? इफेक्टिवनेस बताइए मुझे, क्या मिला आपको यहाँ? यहाँ सर कह रहे हैं कि ही सीइंग द स्मूथनेस बिकॉज यू हैवंट shown too much difference here. Whatever be the EMA you calculated, there is not too much difference. Okay, yes, okay. Smoothness is there. Okay, Ram sir is saying that there is a smoothness. All right, fine. What about else? There's a smoothness. So smoothness का मतलब तो ये हुआ, that means I haven't given the weightage to the recent data points more. यदि smoothness हो तो, if there is a smoothness, so where I gave the much more weightage to the recent point, ये तो बताइए मुझे, फिर कहाँ हुआ? तो क्या चेंज करूं फिर मैं? what change do you expect from me to do here, to be done here in this particular numerical? अच्छा, coding wise also I did perform this task. Let me show you. Coding wise also I did. This is the code for EMA. ओके, एंड यहाँ पर लेट मी शो यू द कर्व ऑल्सो, क्या आ रहा है तो वहाँ आप बताइएगा मुझे। ये आपका जो है लाइब्रेरीज है, numpy pandas matplotlib, एंड हियर आई एम टेकिंग अ रैंडम डेटा। ठीक है, हियर आई एम टेकिंग अ रैंडम डेटा। सो हियर आई एम टेकिंग द क्यूमुलेटिव सम। ओके, क्यूमुलेटिव सम। Okay, so first consider a random data of 100 points and take the cumulative sum of it and assign this thing to a time series data. उसको एक डेटा बना लो आप। If you want me to print it तो मैं उसको प्रिंट भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। सो प्रिंट दिस डेटा, टाइम सीरीज डेटा। ओके, कर देते हैं ऐसे, कंट्रोल सी एंड लेट मी पुट इट हियर, कंट्रोल वी, इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, एंड देन आई नीड टू कैलकुलेट द ईएमए डेटा एंड द स्पैन। सो दिस इज ई डब्ल्यू एम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वेटेड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वेटेड। ठीक है, ई डब्ल्यू एम, एंड आई एम नीड टू गिव अ स्पैन, जैसे फ्रॉम वेयर टू वेयर आई वांट टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर आई नीड टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज, so span I'm giving. ओके, एंड हियर इज व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग द मीन। वो कह रहा है कैलकुलेट, तो स्पैन 10 का दे दिया मैंने, नंबर ऑफ पीरियड्स। सो EMA 1, EMA 2, EMA 3 अप टू EMA 10। ठीक है, ऐसा करके शायद ये बोल रहा है, इतने का स्पैम देने की बात हो रही है। और यहाँ से बोला कि EMA कैलकुलेट करो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो इस टाइम सीरीज का। ठीक है, ये कहा जा रहा है। फाइन, और यहाँ पर आपने EMA का फॉर्मूला लगा रखा है। दैट्स व्हाट यू हैव पुट, EMA फॉर्मूला। ठीक है, वही रिटर्न कर देगा फाइनल रिजल्ट। ओके, तो चलिए मैं पहले, अच्छा ये कुछ ऐसा करके प्लॉट आ रहा है, बाकी मैं आपको एक बार फिर रन करके बताता हूँ। लेट मी रन द कोड। दीज आर द वैल्यूज। पहले ये वाला डेटा लिया आपने, 1.7, 2.16, 3.14,
This is the data which you have taken. Okay, it's a random data of 100 points. Okay, where cumulative sum has been taken. Cumulative sum. What is the cumulative sum? What do you say about the cumulative sum? हम cumulative sum से क्या समझ रहे हैं? Continuously adding like values Continuously later adding the on. values. So, sir, this is 1.7. This came to be 2.1. How 3.14 came, sir? How 3.14 came? Sum of 1 and 2. Sum of 1 and 2. So, do you think, sir, these two are added to get this 3.14? Is that the case? It looks like some. It looks like this thing only. Okay, ऐसा होना तो चाहिए. But Sir, I assume that the second value and the difference between the first and second value. My guess, it is guess, sir. okay, second value and the difference between first and First and the second, sir. The difference between two. okay, this value plus the difference between this. That's what you are Yes, sir. saying. Yes, sir. Okay, fine. Anyhow, I need to get this particular value by adding these two. जैसे पहला जो सजेशन आया वो भी सही था. क्यूमुलेटिव सम यही होता है. The next value is the addition. तो जैसे ये आया 3.14, that will be like something addition of this. अब जो ये वाला next value आया ना, that will be the addition of these two. ऐसा expected है. ठीक है. अब सी इफ यू वांट मी टू डू दैट, मैं अभी कैलकुलेटर से आपके सामने यदि यहाँ पर करूँ 2.164. Okay, let me show you. Cumulative sum, what it is. 2.16420,955 plus 3.14294754. The result is 5.3071, something like that. That's what the result is coming. 5.3071. Okay, if I add these two, okay, might be these are round off values. Okay, इतने यहाँ तक आया है and बाद में फिर ये भी round off किया है. ठीक है. And if I add these two also, I think ये एक मुझे शायद ये result मुझे expected है. मैं इसको भी check out कर लेता हूँ. 1.764052. Okay, so here it is. Let me 235 plus 2.16420,955. The answer is 3.9. Adding these two, I'm getting the result as 3.9, but here I'm getting 3.14. That means ये जो addition ले रहा है, मतलब जो cumulative sum निकाल रहा है, as per what we have expected, though it is taking 100 random values, it is calculating the cumulative sum. And cumulative sum is, as the suggestion came, कि सर वो जो previous जो है ना वो इनका sum होता है वो. ठीक है, बिल्कुल ये सही बोला था उन्होंने कि इन दोनों को करूंगा ये आएगा, फिर इन दोनों को करूंगा ये आएगा, देन फिर इन दोनों को करूंगा तो आई शुड गेट दिस थिंग. ओके, मीनवाइल जैसे सर ने भी फिर एक चीज बोली कि सर ये दिस प्लस द डिफरेंस ऑफ दिस माइनस दिस. एम आई राइट सर? दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग. Yes, sir. Yes, दिस sir. प्लस डिफरेंस ऑफ दीज टू. ये कम्युनिटी सिंग में ले रहा है. अब सर थोड़ा सा मैथ्स और करना पड़ेगा. आई एम नॉट टेकिंग टाइम फॉर दैट. तो यदि ऐसा है ठीक तो उसमें ऐड करके आप करके देखिएगा. और ये तो रैंडम आई टुक. Okay, so if you run the code now, every time it will change, sir. Okay, so it will not be fixed because I'm taking a random data. Anyways, तो cumulative sum है. ऐसा करके उनको टाइम सीरीज बनानी थी बस. ठीक है, अपन को ज्यादा उसमें भेजा नहीं खपाना. ठीक है, they want to make a time series data, तो उन्होंने बना दिया. Okay, that's what they build. Fine, they just made a time series. Okay, based upon it. Now the point is, अगला जो चीज है चलो बना दिया, उसके बाद उन्होंने कहा EMA कैलकुलेट करो. कैलकुलेट द EMA एंड रिटर्न दिस थिंग. ठीक है, अब ये मीन और ये क्या बातें हो रही हैं फिर. स्पैन इक्वल टू 10. ये देखो मैंने लिया नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर ईएमए. हाउ मेनी पीरियड्स. ओके, कब तक आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है. अब वो मूविंग एवरेज है ना, तो यार इसने मीन लगा दिया. और नाम के हिसाब से एवरेज, एवरेज बोले तो मीन. ठीक है, एवरेज बोले तो मीन, वो कर दिया. ठीक है, तो I need to calculate the moving average for this particular span. तो 10 लिया यहाँ पर span. ठीक है, और फिर बोला कि कैलकुलेट करो ये मैं पी डी डॉट सीरीज. जस्ट
कन्वर्ट दिस डेटा इनटू सीरीज, इसको सीरीज डेटा में कन्वर्ट करो पहले आप। कन्वर्ट दिस डेटा विच इज राइट नाउ प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, आई गेस। ठीक है, ये एक लिस्ट है, लिस्ट भी नहीं है ये तो। ठीक है, लिस्ट होती तो कॉमा होता, लिस्ट भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक रैंडम एक नम्पी अरे है। दिस इज राइट नाउ अ numpy array, it's a numpy array actually, and then we are converting this numpy array into a pandas series। ठीक है, इस टाइम इस डेटा की टाइम सीरीज बना रहे हैं अपन, और ये पर्टिकुलर स्पैम देकर, ये 10 देकर, स्पैम देकर, वी आर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ इट, एक्सपोनेंशियल मीन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं। ओके, प्री डिफाइंड फॉर्मूला है यहाँ, जहाँ जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच इज मेंशन EWM लाइक समथिंग दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने ना तो स्मूथनिंग फैक्टर कुछ यहाँ मेंशन करा, कोई भी बात यहाँ पर मेंशन नहीं करी। तो मेरा जो मेन कंसर्न था कि यार ये बता सकूं, वो मैं इस कोड में नहीं बता पाया। ठीक है, मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो वट एवर बी द काइंड ऑफ न्यूमेरिकल ना विच आई डिड, इसके करस्पॉन्डिंग लेकर चलना पड़ेगा, वो सही रहेगा। ठीक है, एनीवेज फिर भी जो भी करा है उसको अपन यदि देखें, ये डायग्राम, ओके, दिस इज द डायग्राम। तो प्लॉटिंग किसके बीच में करी गई है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये टाइटल दे दिया। प्लॉट मैंने बनाया है टाइम सीरीज डेटा और EMA के बीच में, जो भी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये तो ओरिजिनल डेटा है। तो ओरिजिनल डेटा आपको ये ब्लू से बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस ब्लू डेटा इज अ ओरिजिनल डेटा एंड डॉटेड इज अ EMA डेटा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेटा। सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द वैल्यूज, बस यही हो रहा है। और इफ आई डू से सिंपल टर्म्स में भी मैं बात करूं कि ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है, इसने खुद ने क्यूमुलेटिव सम लेकर चला ये टाइम सीरीज बनाने के लिए, और बाद में एवरेज भी कर रहा है। इट्स टेकिंग द एवरेज ऑफ द वैल्यूज, यानी कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, इफ यू आर हैविंग अ डेटा लाइक दिस, लेट अस सपोज यू आर हैविंग अ डेटा लाइक दिस, ये, ठीक, and you are having a values, for example this x values are 1 2, then 1 2 3 4 5, for example these are the values। आपने इसमें एक क्या करा, एवरेज वाली बात करी। एवरेज वाली बात करी, आपने कहा कि पहला वैल्यू 1 है, दूसरा वैल्यू इज द एवरेज, सो 1 + 2 3, 3/5 यानी 1.5, फिर 2 + 3 दैट इज 5, तो 2.5, देन 3 + 4 7, 7/2 इज 3.5, 4 + 5 9, 9 का है 4.5, ये करके चल रहा है वो। ठीक, इट इज डूइंग दैट, वो मीन ले रहा था ना, दैट वाज टेकिंग द मीन, वो मीन ले रहा था, तो वो करंट दो वैल्यूज का मीन ले रहा था। तभी उसने डॉटेड जो बनाया, अब देखो 4 और 3.5 को जब मैं प्लॉट करूंगा थोड़ा सा नीचे आएगा वो। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग चलो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, बाद में वो दूसरे पॉइंट के थोड़ा सा बिल्कुल उससे टच तो नहीं कर रहा। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो मुझे बनते हुए नजर आ रहा है, वो कुछ ऊपर या नीचे ऐसे करते हुए बनते हुए नजर आ रहा है। देखो शुरुआत तो उसने यहाँ से करी है सेम पॉइंट से, प्लीज चेक, फ्रॉम द सेम पॉइंट इट इज स्टार्टेड, देन लेटर ऑन ये डॉटेड वैल्यूज जो है इट्स कमिंग लेस, समथिंग लाइक दिस, एंड फिर वो ऊपर हो गया, एंड देन इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो एवरेज निकालते हुए कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो काम कर रहा है। फाइन, तो हम रोलिंग या रोलिंग भी कुछ ऐसे ही करते हैं, जैसे रोलिंग 7 days या 3 days, उसमें क्या करते हैं, अपना जो टाइम सीरीज या आपका फाइनेंशियल जो आपका डेटा होता है, जहाँ पर आप स्टॉक प्राइस वगैरह निकालते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो ना वी डू सच काइंड ऑफ थिंग, रोलिंग करते हैं। यानी कि जैसे ये मेरा जो है डेटा है, ओके, फॉर द टाइम सीरीज, ओके, दिस इज द डेटा, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है, रोलिंग करना है 3 days का। ठीक है, 3 days का रोलिंग करना है, तो जैसे मेरे पास एक्स है और रोलिंग मुझे करना है यहाँ पर 3 days का, तो क्या करेंगे, जैसे ये एक्स का वैल्यू एक्स 1 2 3 4 5 6 7, रोलिंग में ये होता है कि वो ये, ओके ओके, ये 3 वैल्यू छोड़ देगा वो, मुझे रोल करना ना आफ्टर 3 days, यहाँ से शुरू करता है वो 1 2 3 4, यहाँ से शुरू करता है वो, दिस इज रोलिंग 3। 7 days में क्या हो जाएगा, वो 7 एंट्री छोड़ देगा, फिर उसके नीचे से काम करना शुरू करेगा, और यदि एवरेज बोल रहा तो फिर एवरेज करेगा।
इट विल टेक द एवरेज ऑफ द वैल्यूज। अभी मैंने सिर्फ रोलिंग 3 बताया आपको कि क्या होता है, वो 3 वैल्यू छोड़ के फिर यहां से शुरू करता है। ठीक है, ऐसे ट्रेंड बनाने की बात करता है। ठीक, ये उसी तरीके से। ऑलराइट, स्टिल माय कंसर्न वाज, ठीक है, प्लॉट तो देख लिया, लेकिन वो मुझे स्मूथनिंग फैक्टर, वो सारी बातें यहाँ पर इस कोड में नजर नहीं आई। लेट मी गेट बैक टू माय इनिशियल प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर क्या आप मुझे कह रहे हैं कि सर ये स्मूथ मिल रहा है मेरे को, स्मूथनेस से। यदि स्मूथनेस मिल रहा है, दैट मीन्स आई हैवंट असाइंड द मोर वेट टू द करंट डेटा पॉइंट्स। यदि स्मूथनेस है तो क्या मुझे फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा? डू आई हैव टू चेंज द फॉर्मूला? व्हाट डू यू सजेस्ट टू मी? आपका सजेशन दीजिए, ऐसा तो ना किसी ने लिख के दे दिया या आ गया तो यही सही है भाई। मेरे को जो द थॉट विच वी आर टेकिंग, okay, the concept of what it says, we have to follow that. So shall I have to change the formula here? Okay, क्या लग रहा है आपको, क्या ये ऐसा होना चाहिए? यदि इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो EMAT is equal to 1 minus alpha into data t plus alpha into EMAT minus 1। what do you think? ये सही होना चाहिए। यदि मैं अल्फा इक्वल टू 0.2 ले रहा हूं, ठीक है, दैट मीन्स आई एम गिविंग 20% वेटेज टू द ओल्डर पॉइंट्स। सो नए वाला डेटा को 80% मिलना चाहिए था ना, तो ये हो जाएगा ना फिर 80%। ऑब्वियसली ये 0.8 हो जाएगा। और जो नया वाला डेटा था, लेट्स गेट स्टार्टेड विद 10, यहाँ से शुरू करा, ये नया डेटा है, प्लस अल्फा इंटू, अल्फा बोले तो 0.2। ओके, जस्ट रिमूव दिस थिंग, अल्फा बोले तो 0.2। ओके, तो मूविंग एवरेज जो पुराना वाला है 0.2 इंटू अभी कुछ भी ले लो, मान लो 10 ही मान लो उसको। ठीक है, सो विल गेट द रिजल्ट एज 8 प्लस 2। ओके, 80 इंटू 10। ओके, 0.8 इंटू 10 इज 8। ओके, 0.2 इंटू 10, सो ये हो जाएगा, द आंसर इज 10। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वॉज 12, फॉर एग्जाम्पल 12। सो अगेन EMA एट ए टाइम टी, मतलब 10 था पहले, अब 12 हो गया, तो सेकंड वाला ये मैं ले रहा हूं मैं। ठीक है, सो दैट विल बी 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है? वही 0.8। डेटा टी, तो नया वाला डेटा क्या है? व्हाट इज द न्यू डेटा पॉइंट? इट इज 12 प्लस अल्फा यानी 0.2 इंटू पुराना वाला कितना आया? 10 आया। तो भाई ये पुराना हो गया ना, अब इसको मैं 0.2 कर देता हूँ, सीधे डीके कर देता हूँ इसको, और नए वाले को मैं 80% का वेटेज दे देता हूँ। क्या आपने यहां ऐसा करा था? बताइए बताइए, हैव यू डन दिस थिंग हियर, और मैं गलत चल रहा हूं फिर? बताइए, हियर व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज द रीसेंट पॉइंट, इसको क्या दिया आपने? 0.2। और ऊपर क्या समझाया था अभी? ऊपर एक जगह बोला ना, we will use smoothing factor alpha of 0.2, which means it will give more weight to the most recent data point, that is 80% weight to the new data point। ये 80% weight दे रहा है नया डेटा पॉइंट को, एंड 20% टू द ओल्डर। क्या ये 0.2 ले लिया तो ये 80% दे रहा है वेटेज नए वाले पॉइंट को? मेरा नया वाला पॉइंट 12 है, 0.2 से मल्टीप्लाई करने पर आई एम गेटिंग मोर वेटेज हियर, और आई एम गेटिंग मोर वेटेज टू द ओल्डर वन। बताइए, आपके सामने मैथ्स है ये। 0.8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, विच इज हैविंग हाइयर वेटेज, 0.2 इंटू 12 और 0.8 इंटू 10। बताइए किसका वेटेज ज्यादा है? हुज वेटेज इज देयर? यहाँ तो मैंने ओल्डर से मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 को, यानी 80% इज मल्टीप्लाइड टू द ओल्डर EMA। तो इसका वेटेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा यार, बताइए ना। यस, काइंडली टेल मी, हुज वेटेज इज इंक्रीज्ड? हाँ, ओल्डर वन का वेटेज बढ़ गया, ऐसा तो लग रहा है मुझे। बाकी वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट अबाउट अदर्स, और दे हैव सम डिफरेंट ओपिनियन? ओल्डर वन, ओके फाइन, यस राम सर, ओल्डर वन, ठीक है फाइन। सो वही मैं कह रहा था कि यार फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए यदि इफेक्टिवनेस बढ़ानी तो आपको। ठीक है, ऐसी ऐसी होना चाहिए, 0.8 इंटू 12। ओके, तो स्मूथनिंग फैक्टर में हायर वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड टू द रिसेंट डेटा पॉइंट।
ठीक है, यदि आप कहते हो तो 0.8 इंटू 12 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, और यदि होगा 0.8 इंटू 12 तो यू विल गेट सम वैल्यू, कितना हो जाता है, 96 होता है शायद, ये तो 9.6 होगा, प्लस 0.2 इंटू 10 इज 2, ओके, सो दिस विल बी 11.6 नाउ। तो पहले था 10, अब हो गया 11.6, ठीक है, 11.6 हो गया। यदि मैं प्रीवियस ट्रेंड को यदि नोटिफाई करूं यहाँ, इफ आई डू टॉक अबाउट द प्रीवियस ट्रेंड, ये था 11.28, अच्छा 15 थी ना, हाँ 12 था, तो 12 था तो 10.4 था, अब मेरे को कितना मिल गया, 11.6 मिल गया यहाँ, दिस आई गॉट एस 11.6, ठीक है। और अब मैं मान के चल रहा हूं कि यार जब आपने करा 1 माइनस अल्फा विद द लेटेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करा, तब जाके आई एम फीलिंग दैट ओके, नाउ यू आर गिविंग द इंपॉर्टेंस मोर टू द रीसेंट डेटा पॉइंट, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, दैट मीन्स यू आर मेकिंग दैट पॉइंट नॉट स्मूथ, यू आर मेकिंग दैट पॉइंट इफेक्टिव। स्मूथ होता तो तुम सिर्फ कम वैल्यू देकर चलते उसे, ठीक है, अब आपने दिया है 1 माइनस अल्फा, ठीक है, दैट मीन्स 0.8, ठीक है, 0.8 वैल्यू दे दी आपने उसे, और ये इसको बोल रहा है स्मूथनिंग फैक्टर, मतलब कई लॉजिक जो है ना वो ऐसे बात में आ जाएंगे, स्मूथनिंग फैक्टर इट लाइज बिटवीन 0 to 1, अब फिर वो कान पकड़ेगा आपके, वो बोलेगा भाई देखो स्मूथनिंग फैक्टर है 0 से 1, 1 का मतलब तो हो जाएगा हाई, हाई स्मूथनिंग फैक्टर, फिर वो कान पकड़ेगा आपके, बोलेगा 0 to 1 होता है ना स्मूथ, 0 मीन्स लेस स्मूथनिंग फैक्टर एंड 1 मीन्स हाई स्मूथनिंग फैक्टर, and if you take 0.8 as the smoothing factor, that means this is a high smoothing factor, ये तो हाई हो गया स्मूथनिंग फैक्टर, और तुमने 0.8 को मल्टीप्लाई कर दिया रीसेंट वाले से, तो तुमने तो हाई स्मूथिंग फैक्टर से रीसेंट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वेट बढ़ा कि घटा, फिर वो कान पकड़ेगा आपके वापस से, मैं तो तुम्हें दोनों साइड से घुमाऊंगा, ये स्मूथनिंग फैक्टर है और तुमने इतना बड़ा स्मूथनिंग फैक्टर रीसेंट वाले को दे दिया, तो तुम उसको स्मूथ करना चाह रहे हो, that means you are trying to make it smooth or you are trying to make it effective, उलझा दिया ना मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, उलझा। आप बोलोगे सर ये तो दोनों साइड से बात ऐसी हो गई है, आप लेते हो 0.2, तो 0.2 का ऐसे तो टेक्निकल मीनिंग होता है लेस स्मूथनिंग फैक्टर, है ना, 0.2 मीन्स लेस स्मूथनिंग फैक्टर, लेस स्मूथनिंग फैक्टर यानी मोर इफेक्टिवनेस, है ना, यही होना चाहिए था, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग लेस स्मूथनिंग फैक्टर विद रीसेंट डेटा, यानी आप, ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने उसको ऐसा इफेक्टिव बनाया, मोर इफेक्टिव तब बनाया जब स्मूथनिंग फैक्टर कम करा, एंड मोर स्मूथनिंग फैक्टर दैट मीन्स पुराने डेटा को स्मूथ करा, नए वाले को लेस स्मूथ करा, तो ये इक्वेशन फिर तो सही होनी चाहिए थी, आप इसको गलत बोल रहे हो। अब बताइए, अब मुझे फाइनली बताना, ठीक है, कि क्या समझ आया है आपको, इज दिस करेक्ट, और ये चेंज करना पड़ेगा आपको ना, टेल मी, ये चेंज करना पड़ेगा आपको 1 माइनस अल्फा टू डेटा टी, क्योंकि यदि आपने 1 माइनस अल्फा करा और ये 80% हो गया, तो वो तो स्मूथनिंग फैक्टर है ना, 0 से 1 के बीच में होता है, नियर टू 1 दैट मीन्स मोर स्मूथ, एंड 0.8 से मल्टीप्लाई करा दैट मीन्स रिसेंट डेटा को आप स्मूथ कर रहे हो, इफेक्टिव होने की जगह मोर स्मूथ कर रहे हो, यानी उसका वेट कम कर रहे हो यार आप तो, बात समझ में आई क्या कि क्यों लिखा है वो फॉर्मूला वो। अब बताइए नाउ, प्लीज टेल मी, अब कौन कहां पर सही था, हु वाज राइट, सो द फॉर्मूला वाज करेक्ट और नॉट, ये वाला, इज दिस करेक्ट और नॉट, is this correct, and taking low smoothing factor value here implies that you are trying to make it effective, because अभी आपको ऊपर क्या समझाया था भाई लोग, क्या समझाया था मैंने आपको, स्मूथनेस और इफेक्टिवनेस के बीच में ही तो ट्रेड ऑफ है, जितना कम स्मूथनेस उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस, तो आपने स्मूथनेस कमी तो ली थी नए डेटा पे, उसका मतलब यही है कि आपने उसको इफेक्टिव रखा है, उसको रिस्पॉन्सिव रखा है, ठीक है, उसने गलत नहीं बोला, लेकिन हाँ मैं आपको ज़रूर जो है वो ऐसा कर गया, ठीक है, कि भाई आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ, अब अच्छा बताइए, नाउ यू अंडरस्टूड फाइनली और नॉट, प्लीज टेल मी, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट, या अभी भी कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा।
Just please tell me. I need a feedback if you're listening to me properly. Tell me, you understood EMA or not? So we are going in the right direction with this equation or not? अरे अनिल सर आपने दे दिया. Okay, दलजीत. ठीक है. अंबिका मैडम. Okay, need to practice. Okay, fine. What about others? Okay, so okay, Arijit sir, fine. So the point is, आपको इक्वेशन उसने बोला था ये. फिर से मैं क्लियर कर दूं आपको. ठीक है. ई एम ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेटा टी प्लस 1 - अल्फा इंटू ई एम ए टी -1. तो भाई स्मूथनिंग फैक्टर यदि 0 से 1 के बीच में होता है और आप यदि स्मूथनिंग फैक्टर 0.2 लेते हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग लेस स्मूथनेस, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द रीसेंट डेटा. मैं इसको कम स्मूथ करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इफेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, तभी तो मैंने इसको लेस स्मूथनेस से मल्टीप्लाई करा. एंड ये है 0.8 यानी ज्यादा स्मूथनेस. सो ज्यादा स्मूथनेस से आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट टू द ओल्डर डेटा. बात खत्म है यार, ऐसे समझो ना. ये मोर स्मूथ है तो पुराने वाले को मोर स्मूथ करो, नए वाले को लेस स्मूथ करो, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर इफेक्टिव मिला. ठीक है, दैट्स व्हाट वी बिलीव, है ना. ऐसे ही हम मान रहे हैं. यस राम सर, आज द क्वेश्चन. Sir, when you showed the time series of 5 points, हाँ so the last point, like which one is the recent data, the first one or the last one? Like when we are सर, जो आप, हाँ लास्ट वन इज द रीसेंट सर. लास्ट so वन then we इज are starting from first, where we are giving more weightage to like recent one, no? Like should we start from end or then give weightage and then go like? I'm little puzzled. Like should we Okay. start from, because in a time series the last one point will be the recent The last one, no? point, हाँ, the last point will be the recent one. Yes, So sir. then we are giving weightage to the first point. सर देखिए, अब देखिए सर, यहाँ से शुरू करा. अभी इनिशियली तो यही रीसेंट था. आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस ना. अभी अभी यही रीसेंट था ना सर. दिस वन इज रीसेंट Yes. ना. देन मैं जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर आया, व्हेन आई केम टू EMA 2, सो ये वाला रीसेंट हो गया सर. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट वाज, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? 15. सो 0.2 into 15, अगेन आई गिव वेटेज टू द रीसेंट वन. Okay. ओके, आई गिव द वेटेज टू द रीसेंट वन. और ये पुराना वाला को अब मैं क्या कर दूंगा? 0.8 इंटू दिस EMA इंटू 1, EMA इंटू 1. देन सर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ओके, EMA 3, EMA 3. तो EMA 3 में लेटेस्ट वाला पॉइंट कौन सा आया सर? 12 आया. तो उसको मैं 0.2 करूंगा. अगेन आई गिव द इंपॉर्टेंस टू, तो मैं रिसेंट वाले को नया इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ सर. आई गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस थिंग ओनली सर. Okay. Okay. Got it. तो चल वैसे ही रहा. बाकी पुराना I वाला, thought हाँ पुराना वाला कम हो रहा है सर. I thought we need to start from last point and then go towards like backwards and like. हाँ बिल्कुल. Okay. हाँ सर, हाँ सर, ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं. बिल्कुल आप सही कर रहे हो. इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ये भी जो बोला गया, वी रिक्वायर अ लिटिल प्रैक्टिस टू वर्क अपॉन दिस थिंग. इट डू कंफ्यूज. ओके, बट मैं, आप ये देखेंगे नए नए पॉइंटों को ही मैं जो ऐड होते चले जा रहे हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है हमने. ठीक है, वी आर एडिंग मोर वेटेज टू देम ओनली. ओके सर, तो ऐसा है. फाइन. एंड हियर वी डिड दिस पर्टिकुलर numerical. Okay, and we do use this thing in our ADA grid. Not sorry, not in ADA grid, ADA delta. वहाँ पर अपन यूज करेंगे. RMS prop के अंदर भी हम इसे जो है वो यूज करेंगे. सो द थिंग इज, ऑल राइट, ये मेरे पास है algorithm for ADA delta. Here they are using exponential moving average. ये वाला है. ठीक है. That means the running average EG square at a time t, that means gradient का square at a time t is equal to smoothening factor into gradient का square at a time t minus 1 plus 1 minus smoothening factor into gradient का square. इस तरीके से वो लेकर चल रहा है. Here we are choosing exponential moving average. ओके, ये काम जो है यहाँ पर चल रहा है. ठीक. तो दिस इज द करंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ओके, सो इफ यू आर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहां पर होगा G1 का स्क्वायर, ग्रेडियंट का स्क्वायर. पुराना वाला क्या था अभी आई डोंट हैव. लेट अस सपोज कि द ओल्डर वन वाज 0, टाइम t -1 पर कुछ था नहीं.
तो उसको अभी 0 मान लो। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट अ टाइम t EMA at a time t is equal to अल्फा इनटू डेटा पॉइंट t, जो भी डेटा पॉइंट है अभी अपना करंट जो डेटा पॉइंट है, ओके, वो प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू पुराना वाला ईएमए। तो पुराना वाला ईएमए अभी कुछ नहीं है तो उसको 0 कर दो, ठीक है। एंड ये वाला जो है, इसको इसको आप ले लो, जो ये ले लीजिए डेटा डेटा टी, और आई वुड से कि हम उस पर ग्रेडेंट निकाल रहे हैं, देख लेंगे अभी आगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेंशन है फॉर्मूला। ये देखिए, ये रहा, ये पहला वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये है पहला वाला, मतलब मल्टीप्लाइंग द ग्रेडेंट विद द, ये क्या है, साथ में लिया है आई थिंक लर्निंग रेट, कुछ ऐसा लेकर चले हैं यहाँ पर। ठीक, मुझे तो अलग से ही इक्वेशन बनाना पड़ेगी, ये आपको कंफ्यूज करेगा सारी बातें। आई नीड टू मेक द इक्वेशन सेपरेटली, ओके। क्योंकि यहाँ पर भी बोला गया कि देख लीजिए ग्रेडेंट निकाल लिया, एंड देन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, 1 माइनस दिस ग्रेडेंट का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रीवियस वाला ग्रेडेंट का, और ये नया वाला, दिस इज द न्यू वन। एंड देन फाइनली वो ऐसे ग्रेडेंट निकाल के, ये लाइक दिस ग्रेडेंट निकाल के, यानी कि अब नीचे, ओके, एट द डिनोमिनेटर प्रीवियसली, मैं एक मॉडिफाइड इक्वेशन बता दूं, बाकी मैं आपको शुरुआत से ही समझाऊंगा। ये क्या होगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर में होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द ग्रेडियंट्स का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन, ये होगा इनटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। प्रीवियसली क्या हो रहा था, G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर वो हो रहा था, अब EMA होगा, बस एक ये चेंज है। दिस इज द चेंज डन इन एडा डेल्टा, okay, so instead of just sum of the gradients का square, we are taking exponential moving average of the gradients का square, ये चेंज आया, ठीक है। तो वो स्मूथनिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर रिसेंट ग्रेडियंट को ज्यादा वेटेज मिल जाएगा और पुराने वाले ग्रेडियंट्स का वेटेज कम हो जाएगा, ये है। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको अगली कल की क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगा। आई फिनिश दीज टू, मतलब मैं एडा डेल्टा भी, क्योंकि अब वो हो ही चुका है, ये EMI खास था यहाँ। So once I explain you this equation, okay, and then I will go ahead with the RMS prop, and then I will proceed with the Adam algorithm. All right, fine. तो ऐसे हमारा चलेगा काम, and fine. All right. So let me share the screen for the code. Okay, fine. Here is the code screen. All right. All right. And can you please tell me how you find the class? How you find today's class? Is it like So informative? it is informative, sir. Okay, it's informative. Okay, let me stop